PQ or length of perpendicular drawn from origin to the lines respectively, then prove that. Okay. Distance from origin to the line x sec theta plus और alpha जो भी है y cosec theta is equal to a is what? Origin से perpendicular line ड्रा करो. सर a by sec square alpha plus cosec square alpha. Sec square alpha plus cosec square alpha. इसका mod. This is given p. Okay. So sine, if you change to sine cos, you'll get a sine square theta alpha cos cos square theta into cos square theta अपन 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर. हाँ ठीक है. देन 4p स्क्वायर कितना होगा? 4a sin square a 4a sin square स्क्वायर theta cos square theta. सर इसका स्क्वायर रूट ना. एक मिनट. तो ये sin थीटा cos थीटा होगा. हाँ सर तो मॉड के अंदर होना पड़ेगा a sin theta cos. तो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. राइट. So this became sin square 2 theta. Yes. Again, length of perpendicular from origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta. Okay. तो that length given q. तो q क्या होगा? a cos 2 theta upon cos square theta plus sin square theta इसका स्क्वायर रूट. mod ये तो 1 हो गया. That means q square is what? a square a cos square square cos square 2 theta. 2 theta. अब हो जाएगा a square आ जाएगा ऐड कर. If you added these two, 4p square plus q square, you will get a square only. Right now? Yes sir. Third one. A line L has intercept A and B on axis of coordinate. When the axes are rotated through an angle, keeping origin fixed, the same line has intercept PQ on the transform axis. Okay. This is the line. Whose intercepts are A and B. Correct? अच्छा, अब एक्सेस को हम रोटेट कर लिए थ्रू एन एंगल थीटा में रोटेट कर लेते हैं.
राइट, ऐसे रोटेट कर लिया, लेट अस टेक एंगल इज द थीटा। क्वेश्चन क्या पूछा है? And the same line L has intersect P and Q on the transform axis. Prove that. तो ये आपका P, ये आपका Q. Line remains same. Equation of straight line क्या होगा? With respect to original axis. The new point x dash will be x cos theta plus y नहीं sin. नहीं, equation of straight line with respect to old axis. मतलब ओरिजिनल जो था, इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से क्या होगा? X upon x cos theta plus y sin theta plus y upon minus x sin theta plus y cos theta is equal to 1. ये कहाँ से आया? Okay. ये कहाँ से आया? सर आपका क्वेश्चन मुझे समझा नहीं। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x upon a plus y by b is 1. Equal to 1. हाँ हाँ, तो वो सब कहाँ से आ रहा था? Sir, with respect to new आपने पूछा, ओल्ड पूछा, old ओल्ड लिखा भी। सर तो old है. ठीक है, x by a plus y by b equal to 1. अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू न्यू क्या होगा? X upon a cos theta plus y upon b sin theta. Sorry. So y upon b cos theta is equal to 1. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, x की जगह क्या होगा? सर जो p है वो a cos theta होगा, तो वो x upon a cos theta, A cos theta plus y upon b. वैसे ही plus y upon a sin theta. x अपन a cos थीटा। हाँ सर, क्योंकि वो x dash is equal to x cos theta plus y sin theta यूज किया, फिर y तो इसमें 0 हो गया, Minus x sin theta plus y cos. तो x cos theta हो गई। जीरो क्यों होगा? सर वो क्योंकि वो y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है ना, तो वो पॉइंट जो है वो 0 हो गया y का। सर a comma 0 0 comma b 1. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ओल्ड के हिसाब से दिस इज द ओल्ड, अभी इसको न्यू चेंज करेंगे, x की जगह क्या होगा? सर जो a को रिप्लेस करना ना, x सेम रहेगा ना. क्यों सेम रहेगा? रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज करो ना। हाँ सर, तो a ही है ना वो x से इंटरसेक्ट, तो a cos theta हो जाएगा ना, रोटेट जाएगा. अब ये इक्वेशन में रोटेशन यूज करूंगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज करते तो x डैश क्या होता है? x cos theta plus y sin theta. x cos थीटा माइनस x cos theta plus प्लस होगा ना सर। नहीं सॉरी, ओल्ड विथ रेस्पेक्ट टू न्यू, हाँ x सर, इज तो इक्वल x टू, is equal to x dash cos theta minus हाँ
y dash sin theta. एंड y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, अभी ये क्या हो जाएगा, ये जो x की जगह क्या होगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा अपॉन a, एंड y क्या होगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1. Am I correct? सर तो ए एंड बी अनचेंज है। आप इसका इंटरसेप्ट मत देखो ना, आप देखो कि मैं ओल्ड टू न्यू चेंज कर रहा हूं। व्हेन यू चेंज ओल्ड टू न्यू तो आपका x चेंज हो जाता है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा। मैं तो वही चेंज कर, मैं वही मतलब इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके सर। इसके बाद मैं इंटरसेप्ट चेक करूंगा। आपका क्वेश्चन रहेगा, if axis rotate through an angle theta, then x square minus 2xy plus 3y square equal to 0 क्या होता है? ये ओल्ड होगा तो न्यू का इक्वेशन क्या होगा? ओके सर, समझा। हाँ हाँ, वो फंक्शन के तो आप क्या करोगे, रिप्लेस x as x cos थीटा माइनस y sin y थीटा sin माइनस 2x की जगह फिर x cos थीटा माइनस y sin थीटा, y की जगह आप डालोगे x cos sin थीटा प्लस y cos थीटा, यही करोगे ना? हाँ सर, ये ओके ओके सर, समझा। x sin थीटा, यही करोगे ना? दिस इज द न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो हाँ मैं सर। वही चेंज किया। तो आपका जो इक्वेशन वन चेंज टू इक्वेशन टू, ये विथ रेस्पेक्ट टू न्यू, ये विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड, राइट? यस सर। अब इसको मैं x एंड y को अलग अलग कर रहा हूं, तो यू विल गेट व्हाट, cos थीटा बाय a प्लस sin थीटा बाय b into x, am I right? एंड Yes, sir. y में क्या होगा, Cos cos theta by थीटा b बाय b minus sin theta by a माइनस sin into y. थीटा बाय a into y become 1, राइट? अच्छा, हाँ ये आपका इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कुछ डिफरेंस है क्या? इक्वेशन, अच्छा p फिर कहाँ से मिलेगा, इसका इंटरसेप्ट p दिया गया, ठीक है। तो अभी इक्वेशन इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 2 का इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट 1 upon cos theta upon a plus sin theta. बट फिगर वाइज इसका इंटरसेप्ट क्या है, ये अभी ओल्ड न्यू हिसाब से ना, ये x डैश ये y डैश, ठीक है। फिगर वाइज देखा जाए तो ये a cos theta होना चाहिए। इसका इंटरसेप्ट क्या है, अभी आप ओल्ड को भूल जाइए। अब वो जो लाइन न्यू एक्सेस के साथ कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, सेम एल न्यू एक्सेस के हिसाब से उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, अरे ये आपका न्यू एक्सेस ना,
ये हाँ। आपका एल, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्सिस के हिसाब से इसका इंटरसेप्ट ये भी है ना, हाँ सर वही है। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू न्यू, नॉट ओल्ड। हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, ये किसका इक्वेशन? न्यू का इक्वेशन। न्यू का इक्वेशन। तो न्यू के इक्वेशन के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ये। तो व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट? cos theta by a plus sin theta by b 1 upon cos theta by a हाँ by सर वही बोला था। नहीं, उसका वैल्यू क्या होगा वो मैं पूछ रहा था। आप तो एक्स इंटरसेप्ट बता दिए, बट कंपेयर नहीं कर पाए ना। एक्स इंटरसेप्ट इज पुट y इक्वल टू 0, 1 अपॉन cos theta upon a plus sin theta upon b. It is what? p. ये जो इंटरसेप्ट न्यू के हिसाब से उसका इंटरसेप्ट क्या है? p. टी। तो ये p के साथ इक्वल होगा, implies 1 by p is equal to cos theta by a plus sin theta by b. Is this clear? yes sir। Similarly 1 by q क्या होगा? ये होगा cos theta by b minus sin theta by माइनस sin theta upon a। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो थर्ड स्क्वायर प्लस फोर्थ स्क्वायर implies 1 by p square plus 1 by q square। क्या होगा? cos cos square theta by a square plus cos square theta by b square। और आप लिख सकते हो cos square theta by a square plus sin square theta by a square। क्या मिलेगा? base 1 अपॉन ए 1 upon a square sin square सर theta by वैसे b उसके square लिए plus sin square theta by cos square theta by b square प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर वो प्लस plus 2 2ab माइनस minus 2ab got cancelled। आ गया? हाँ सर। हाँ अब समझा? yes sir। हाँ Right done। कुछ डाउट है? बाकी ये बराबर किया ना? हाँ सर बाकी सब कुछ आ गया। ये तो लग रहा है, ये तो करेक्ट लग रहा है। अच्छा, मेजर्ड एलोंग द लाइन, वो परफेक्ट किए। डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 फ्रॉम द लाइन। हाँ सर, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और दोनों के बीच का intersection point डिस्टेंस। और distance होंगे। ओके, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2,3 किस में सेटिस्फाई कर रहा है? इसमें कर रहा है ना? हाँ हाँ। 2,3 ये लाइन के ऊपर है, आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना? दिस इज द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9। अच्छा, लकीली ये जो पॉइंट ये लाइन के ऊपर था, सपोज नहीं होता तो फिर क्या करोगे? अच्छा, 2,3 के जगह मैं दे देता हूँ 4,7। तो फिर क्या करोगे? 4,7 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे? सेम क्वेश्चन। सर तो सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के कर सकते हैं ना कैसे? सर। पॉइंट पे कहीं भी रहने दे सकते हैं पर इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो उसका डिस्टेंस निकालें। बट
4,7 से कैसे करोगे? तो 2x minus 3y plus none x minus y plus 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे। नहीं, पहले क्वेश्चन समझ में आया? दिस हाँ। इज द लाइन आपका 2x minus 3y plus 9 equal 0, 4,7 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना? 4 रखा था 8 नहीं नहीं, आ रहा। नहीं हो रहा है। और एक आपका ऐसे एक लाइन दिया गया x minus y plus 1 equal to 0। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था ये 2,3 लाइन के ऊपर आ रहा था, ठीक है? तो इसलिए आप ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। 2 minus 3 9, 1 minus 1 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? -3 + 9 6 upon -2 + 3 1, है ना? तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 6,7। और ये 6 मैंने ये पॉइंट क्या दिया? 4,7 दिया, ठीक है? 6,7। तो ये पॉइंट 6,7 जब आ गया तो आपको डिस्टेंस मिल गया, ये P ये Q। तो PQ का डिस्टेंस आप निकाल दिए 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 4 रूट। ओके, ये करेक्ट था। अब 2,3 के जगह मैंने 4,7 कर दिया, तो फिर क्या करोगे? तो हाउ टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन नाउ? 4,7 और x minus 1 प्लस उसका लाइन का 4,7 सपोज हियर, तो क्या करोगे? मुझे ग्राफिकली बताओ आप क्या सोच रहे हो, तब मैं बता पाऊंगा आप करेक्ट सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो। सर मैं परपेंडिकुलर बनाने कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे? वो पॉइंट से वो x minus y plus इसको 1। हाँ इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ओके? देन ए डिस्टेंस, माइनस और सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ax1 तो फिर 4 minus 7 नहीं plus वो 1। जो भी आया, सपोज जो भी कुछ आया, लेट दिस डिस्टेंस P आया, तो फिर वही डिस्टेंस को बोल रहे हो? नहीं सर वो along the line है। हाँ, अलोंग द लाइन मतलब क्या होता है? जरूर नहीं कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, हाँ, तो वही होगा ना फिर। मतलब ये अलोंग द लाइन मतलब उसके डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है? सपोज आपका 4,7 वो तो पॉइंट लाइन के ऊपर दिया गया था, नहीं भी दिया जाएगा, देन कैसे करोगे? 4,7 देके एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज पैरेलल टू x minus y plus 1। ये लाइन के साथ पैरेलल होगा, ठीक है? अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट समझा? अब ये क्यों होगा? तो लाइन passes to 4,7 and parallel to this line, उसका इक्वेशन क्या होगा? y minus 7 is equal to इसके साथ x पैरेलल, minus y plus 3 is equal to 0। ओके? मतलब द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन x minus y plus constant equal 0। अभी 4,7 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा का वैल्यू 3 मिलेगा, तो हाँ x minus y plus 3 become is 0। equal to 0। अब इसके साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे,
ठीक है, हाँ तो 2 minus 3 9, ये 1 minus 1 3, तो ये 0 आ गया। when x 0, y का वैल्यू कितना होगा 3, तो ये जो पॉइंट मिला 0,3। और पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा 4 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा इधर भी वही आंसर आया क्या, मतलब वो क्या था, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गया, ये इधर आ गया, तो डिस्टेंस सेम देखा। समझा, कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है। यस सर। तो इसको वेक्टर जैसा सोचोगे, अलोंग द वेक्टर मतलब तो उसके डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वेक्टर होगा। पैरेलल टू दिस लाइन एंड ये, अच्छा इसको कैसे निकालें, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, सर इसके पहले साथ पैरेलल हो रहा है पर, तो पहले और स्लोप सेम होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दो लाइंस का, फैमिली ऑफ लाइंस का ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज का इक्वेशन निकालेंगे। हाँ चलेगा। Otherwise, two different ways you can do. What you say that also correct. तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना और फिर वो पैरेलल में सेटिस्फाई करना। Okay. Equation of straight line parallel to this line क्या होता है 4x minus 7y plus lambda equal to 0. Now ये तीनों लाइन क्या हो जाएगा, तो आप जो कि आप वो भी कर सकते हैं। ये तीनों लाइन क्या होगा, ये तीन लाइन को मैं क्या बोला बताऊंगा, फैमिली ऑफ लाइंस तो एक होगा, और पर्टिकुलर क्या होगा, these three lines are concurrent line, एक पॉइंट पर पास करेंगे ना, ठीक है। नाउ दिस थ्री लाइंस आर कंकरेंट लाइन, आपका क्या टारगेट है, लैम्डा वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कंकरेंट होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ 4 minus 7 lambda 4 minus 3 minus 10 1 6 minus 9, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो हाँ आपका कितना आया 27 plus 60 87 into 4, then plus 7 into minus 36 plus 10 minus 26, am I correct? Plus lambda into 24 plus 3 27 became 0, तो ये कितना हुआ 27 plus 60 87 into 4 348 minus 182, correct ना, हाँ plus 27 lambda equal to 0, then lambda कितना हुआ 348 minus 182 सर वो 162 है, वो 150 नहीं होगा, मैंने गलत 160 166 है, 56 से पहले अपन टाइप गलत किया। माइनस 20 यही आएगा ना, तो लैम्डा की जगह आप वो डाल सकते हो माइनस 166। अच्छा आप बोल रहे हो कि आपका जो लिखे थे वो गलत है, 166 होगा। तो आपको अनिरुद्ध कैसे सेम मिला,
तो शायद सब्ट्रैक्शन में गलती हुआ होगा। ठीक है, बट 166/27 मिला था ना लैम्डा वैल्यू, मतलब आप जब पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के यूज किए थे, लैम्डा वैल्यू ही मिला था कि नहीं मिला था? आप एक बार चेक करो, नहीं तो मेरा कहीं पे मिस्टेक हुआ हो। तो मैं भी एक बार चेक करता हूँ पूरा, एक मिनट। सेकेंड मेथड, आप ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। 4 -3 -10 1 6 -9 कितना होगा एक्स वैल्यू? वही आएगा 87/27। वाई का वैल्यू -40 प्लस -4/27, करेक्ट ना? यस, एक्स एंड वाई मिल गया। अब इसमें सेटिस्फाई करेगा। आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिए? 4x -7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इंटू 87 जो मिला था, 340 देन -7 इंटू वाई। अच्छा, वाई कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये सेम नहीं आ रहा है, तो मेरा कहीं पे मिस्टेक होगा इस साइड तो में। y 26/27 आना चाहिए। वाई का वैल्यू इधर कितना मिला? एक मिनट, 4 -3 -10, 4 -3 -10 बराबर लिखा। 1 6 -9, 1 6 -9, 1 6 -9, 4 -7 लैम्डा, करेक्ट है। तो y का वैल्यू -40 प्लस 4, इधर कुछ तो गड़बड़, -36 ना। +36 हुआ ना? अच्छा अच्छा, सॉरी, -10 नॉट -40। ओके, -10 प्लस 36, 26 आया, बराबर है। ठीक है, अब इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा? 87/27 इंटू 4, 7 इंटू 26/27 27 प्लस lambda लैम्डा इक्वल टू 0, वही चीज आया ना? same value। समझाइए। यस सर। आप कोई, मतलब आप डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट भी यूज कर सकते हो। सर वो थर्ड वाला क्वेश्चन लिख ले क्या, एक मिनट।
सर आपने जो क्वेश्चन चेंज करके दिए थे वो भी एक बार दिखा सकते हो? नहीं सर, ऊपर वाला, हाँ वही। यस। सर हो गया। Kind of.
सर फर्स्ट क्वेश्चन एक बार समझा सकते हो? एंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इनके फैमिली, इसके फैमिली में जाएंगे एंड सिचुएटेड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द -2,9, वो जो लाइन रहेगा इसके फैमिली में कितने सारे लाइन्स है? बहुत सारे होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। तो हाँ। इसके फैमिली में रहेंगे और ये पॉइंट से सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस करेगा। एक पॉइंट से सबसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटेस्ट होना चाहिए। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे बड़ा होना चाहिए।
सर क्वेश्चन 1 वापस समझा सकते हैं? सर आपका 2 लाइन्स गिवन, हाँ सर 3x minus y minus 12 equal to 0 and 2x. प्लस y माइनस 9 Suppose here one point is here. हाँ सर It is minus 2, इस 9. 2 कमन है तो आपका फैमिली ऑफ लाइन से इसके इंटरसेक्शन में सब जाएंगे, पास करेंगे. यस सर ऐसे सब पास करेंगे. ठीक है. हाँ तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. ये डिस्टेंस जितने सारे लाइन जा रहे हैं ना, सबसे मैक्सिमम होना चाहिए. ओके ओके सर ओके. ये सपोज ये आपका ये L1 L2 गिवन है. L1 L2 गिवन, ये आपका L3, ये आपका L4. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा. इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस ये होगा. इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा. तो बोल रहा है कि which line the family of this line also maintain greatest distance from this point. एक ही लाइन है. -2,9 से सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा. ओके
डन। हाँ सर, वो पहला वाला नहीं है, बाकी सब हो गया। अच्छा, पहला वाला नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन समझा? हाँ मैं जितने सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपका PAC हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ A1 A2 A3 A4 जो भी है, बराबर। यस सर। इफ यू गो फॉर दिस ट्रायंगल, देन A1 पर राइट, ये PA1C राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, PA2C राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, PA3C राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, PA4C राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। ओके, तो आप कुछ सोच सकते हो, आप लाइन कहां से ड्रॉ करोगे सबसे डिस्टेंस बड़ा होगा, मतलब P से सबसे डिस्टेंस बड़ा होगा। तो हर केसेस के लिए PC इज योर हाइपोटेन्यूज, हर यस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए PC द हाइपोटेन्यूज हाँ। एंड PA द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा लेंथ देता है, ग्रेटेस्ट साइड होता है। हाँ तो if you draw a line perpendicular itself PC, तो जितने सारे मैंने केसेस रखा, तो वेदर इट इज PA1 और PA2 और PA3, जितने भी PAN, every one less than PC or not. यस सर, लेस देन PC। So if you draw a line which is perpendicular itself PC को ही परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे बड़ा डिस्टेंस दिलाएगा, हाँ समझा। ठीक है ना। हाँ तो द लाइन perpendicular to PC and family of lines is the maintain greater distance from the given point. सर, तो सबसे पहले PC का स्लोप निकालना है और फिर LX का स्लोप। पहले C पॉइंट निकालो, ठीक है। हाँ तो फैमिली ऑफ हाँ, C पॉइंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट आपका 2, 21/5 x है। अच्छा निकाले थे क्या 21/5, हाँ x 3/5। 3/5, हाँ y। ओके, एक मिनट, लेट मी चेक। 63, हाँ सेटिस्फाइंग, 42 + 3 45, ओके करेक्ट है। तो ये पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा, 2x, जो LX में ले रहा हूँ, ये जो लाइन ले रहा हूँ, हाँ हाँ सर, ये क्या होगा, 2x प्लस y + y -9 प्लस लैम्डा -9 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 3x 3x -y - y माइनस, मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, PC का स्लोप 3/5 -9 और 9 - 3/5 42 अपन -2 -31, am I correct? -40। हाँ सर, ये -42/31, whatever this slope, 31/42 हो गया ना फिर LX का। ये 2 + 3 lambda into x, y का वैल्यू कितना
1 minus lambda into y equal to 0. What is the slope? इसका slope कितना? Minus of minus of 2 2 plus 3 lambda upon upon 1 minus lambda. ये कितना होना चाहिए? 31 by 31 40. 42 होना चाहिए, right? Yes, sir. 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 84 Plus 126 lambda. 42 126 lambda became 31 lambda minus 31, correct ना? Minus was Yes, sir. there. तो 126 minus 31 95 lambda. lambda equal Minus to 115. Minus 115. minus 115. 5. Okay, lambda हो जाएगा 23 minus 23 upon 19, ठीक है? हाँ, तो लैम्डा की जगह वो डाल सकते हो, तो नहीं तो इधर डाल दो। कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 plus 4 लैम्डा, करेक्ट ना? -9 -12 लैम्डा। सर तो अभी उसको सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 19 into 2 38 minus 69 कितना हुआ? 38 69 31 बराबर ना? ये आपका 19 into 2 होगा। लैम्डा की जगह में जब 23 -23 by हाँ सर, 38 और फिर minus 61 तो minus minus 31 by 19 x, हाँ? 1 minus plus 42 lambda y. 42 y minus 3 plus 4 lambda 57 minus 92 192. कितना हुआ? 35 40. हाँ सर, 35. minus 35 into Minus 3 35 minus 3 plus 105. 105 upon 19 equal to 0, है ना? हाँ और 31x minus 42y minus 105 equal to 0. This is the equation of straight line. ऐसे करो, family of lines यूज करो, नहीं तो आप 2 point format भी यूज कर सकते हो. Okay sir. Okay, 2 point format भी रखोगे तो you'll get. हाँ सर, सिर्फ वो स्लोप 31 by 42 हाँ, और फिर स्लोप मिल गया, स्लोप ऑन पॉइंट डाल दो तो स्लोप 0.5. यस, y minus y1 9 is equal to slope is the minus 42 by 31 into x plus 2, है ना? तो क्या मिलेगा? 31y minus 31 into 9 minus 279. minus 279 equal to minus 42x. minus 84. अरे हम कुछ गलत किए क्या? ये उल्टा आ रहा है। नहीं, मुझे क्या ये लाइन चाहिए था ना, सॉरी सर LX का चाहिए तो वो हाँ, ये लाइन चाहिए था, तो करेक्ट है। तो ये पॉइंट यूज करना पड़ेगा, y minus 3/5 इक्वल टू स्लोप हो गया 31/42 इंटू x minus 21/5, करेक्ट ना? ये पॉइंट पे पास कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर हो रहा है, मुझे ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। यस है ना? तो आपको क्या मिलेगा? 42y minus 42 into 3 126/5 5. equal 31. to
31x x by 42 by 42 नहीं नहीं सर 42 वो मैंने नहीं बोला सर ना, रहता। हाँ 31x वो माइनस लेफ्ट में चलेगा। आपका 31 into 21 650 651 by 5 right. That implies 31x minus 42y became 651 minus 126 सर वो 525 हो गया। हाँ सर वही 525 आया फिर मिला ना वही आया 105 हाँ वही आया समझा सर। वो भी कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन लीस्ट डिस्टेंस पूछा होता तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता तो आंसर क्या होगा? सर लीस्ट डिस्टेंस होता तो मे बी हो सकता है कि वो पॉइंट वो लाइन पे लाएगा। सबसे कम डिस्टेंस रहेगा। हाँ तो कौन सा लाइन होगा? Which line with the family of lines also maintain situated least distance from point P? P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होगा, कौन सा लाइन? एंड इसके फैमिली पर जाएंगे, पीसी लाइन होगा। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 0 ही होगा ना, और इससे कम क्या हो सकता है? हाँ ओके सर तो वो लाइन पे ही लाई कर रहा है ना। हाँ पीसी लाइन होगा। फॉर दिस केस आंसर होगा लाइन पीसी। ठीक है लाइन पीसी निकाल रहे थे, ये जो निकाल रहे थे ना वो लाइन पीसी का इक्वेशन था। इक्वल टू -42x -84 ये मिलेगा आपको, समझा? दैट इज 42x plus 31y became 279.84 कितना 195 plus 279 minus 84 बराबर ना? यस ये आएगा आपका आंसर, समझा? जब मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा तो लाइन passes to that intersection point and perpendicular to the PC segment, ये होगा। मिनिमम होगा तो इटसेल्फ पीसी लाइन हो। बाकी हो गया। हाँ सर बाकी सब वही है। इसमें क्यों डिफरेंट आंसर मिला? Put a perpendicular drawn from 2,3 to the line 4x minus 5y plus 8 equal to 0. तो मैं एक बार अपना आदेश भी चेक कर लो एक बार। तो किसी का तो मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो दोनों का भी हो सकता है। 4x minus 5y plus 8. तो 2 मिनट दीजिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। सर मैंने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से भी वेरीफाई किया तो फिर आ रहा है करेक्ट। अल्फा कमा बीटा फॉर्मूला डालो। अल्फा -2/4 4 बीटा इक्वल टू बीटा -3/5 हाँ इक्वल टू माइनस माइनस पॉइंट को सीधा 8 डालो। 15 8 16 1 आ गया हाँ हाँ अपॉन अपॉन 41 25 yes 41। तो अल्फा हो जाएगा 2 - 4/41 78/40 78/41।
बीटा इक्वल टू 3 प्लस 5/41, हाँ सर यही है। तो 41 मतलब 123, 8/4 सर 128। ठीक है। एनी डाउट इसमें? नहीं सर। ये समझा? हाँ सर। बाकी को ये सर इसमें और भी का कुछ वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो सर मैंने ax प्लस ay इज इक्वल टू a लिया और 2bx प्लस 3by को b लिया, फिर वैसे किया। एक मिनट। if the family of lines passes to a fixed point, okay, इसमें क्या करोगे, दो स्ट्रेट लाइन निकालो, ए बी दिया गया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो एक कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन रखेंगे तो x प्लस प्लस y इज इक्वल टू a। -1, हाँ सर। ठीक है, b कॉमन रखेंगे, देन यू हैव 2x 2x प्लस 3y माइनस 1। प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इट इज a इंटू L1 प्लस b इंटू L2 बिकम 0। सर तो दोनों को 0 के इक्वल। हाँ, ये L1 प्लस b बाई a, ये लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन फैमिली ऑफ लाइंस। अब क्या होगा, ये कोई भी ए का बी वैल्यू होता है, बट ये 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन को 0 करना पड़ेगा, तो हाँ यही सर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, मतलब 1 1 -1 एंड 2 3 -1, तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 नहीं +2 अपॉन 1, 1 एंड y का वैल्यू क्या हो गया, ये 0 था ना, x की जगह 2 डाल देंगे, माइनस -1, तो 2 -1 था। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर। सर। और वो होमवर्क भी ना 1 एक्सरसाइज और वो जो असाइनमेंट दिया था। 2 असाइनमेंट दिया था, हाँ 2 दिया था ना, हाँ सर। एक, हाँ सर 2 नहीं था सर, से 1 था, उसमें अंदर एक्सरसाइजेस थे। अच्छा ठीक है, वो कर लो, हाँ सर। नेक्स्ट टाइम जो भी डाउट है पूछना। ओके सर। चलो, थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर। बाय।